Hey guys, welcome back to our channel. You hear me, Stevie K. Guys, today I'm doing a full movie reaction. Obviously, you guys know that Street's on a sort of a mini break. She will be back soon. And so there's some films that I'm going to wait till she returns, like Donkey and Fighter. So when, you know, she's back, she wants to do those videos. So I'll do a full movie reaction on those. But for now, I'm going to try to do as many movies as I can. Loads of people have been requesting for such a long time. Films that I haven't had the chance to watch. Some films that obviously Street doesn't want to watch, or they're not that. I'm more of a movie buff than she is, so there's only certain films that she likes to watch. She's got time to watch, so we fit in whatever we can when we can. Suraru Potaru, is that what it is? Surare Potaru, I believe. Hopefully I pronounced that right. Translated as Praise the Brave, also known as Udaan in, you know, the Hindi version. Starring Surya. I haven't seen this, but I want to watch an inspirational movie, and I believe this is one loads of people have said. There's so many other films that loads of people have been requesting, like Mersal. I did think about watching, but I watched Leo not so long ago. I don't think I've seen a film of Surya's. Obviously watched Salar with Prabhas. So do let me know what other movies that you guys think that I could watch by myself that I will enjoy. Could be inspirational, could be, you know, action. Could be psychological, thrillers or anything, something that's really good, basically. And then obviously you guys know what kind of film Street likes. Street does like the big mass entertainers, the ones with the good songs, you know, like you like them, like the Jawans and the Pathans and the Donkeys and the probably the Fighters and the Wars and yeah, those kind of things. And also she does like the odd story here or there as well, so it's not that she don't. But like I said, I don't know when she'll be back or what, you know, because she's takes some time out. So do let me know. Write down in the comments below which movie shall I react to next. Hopefully this is, you know, I can see from the reviews and everything, it's a good movie. Like I said, I haven't seen it. I've been looking forward to it for some time. And hopefully you guys will enjoy it with me too. If you haven't done so already, make sure to like, share, subscribe. And I was also going to say, guys, if you want to watch a full, uncut, unedited version of this, you have to jump on our Patreon or you have to come onto our YouTube memberships. Due to copyright, can't put it in the way that I would love to put it. Here it's going to be cut, it's going to be edited, it's going to be on the screen with whatever way I can put it, depending on how many times it gets blocked, just so I can show you guys something. So it's not my fault, it's not that I want to put it like that, it is just the way it is. Because otherwise the videos get blocked or they tell me to take it down. Don't know how other people get away with it, but that's what happens with me. I've got so many films that I haven't even been able to show you guys. So hopefully, fingers crossed, this one goes up. And hopefully you guys enjoy this with me. Now let's get on with the movie. Here we go. Chennai Tower, this is Deccan Air 52. Minimum fuel requesting landing clearance. Go around Deccan Air 582. Unable to go around. I said we have a fuel emergency. Don't you get it? I say again, Deccan Air 582. आप हमें लैंड करने की परमिशन दे क्यों नहीं रहे? कोई प्रॉब्लम है कैप्टन? ये लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। Chennai Tower requesting reason for denial. आप लैंड नहीं कर सकते कैप्टन। प्लेन को लैंड करने से क्यों रोक रहे हो? यहाँ पे लैंडिंग क्यों नहीं हो सकती? मारन वहाँ क्या हो रहा है? लैंड करने क्यों नहीं चाहिए? न्यू कॉपी तामरम एयरफोर्स रनवे 15 वहाँ लैंड करो। वहाँ तक पहुँच पाओगे? क्या हमारे पास उतना फ्यूल है? हाँ, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तुम्हें यकीन है वहाँ लैंड करना चाहिए? अच्छा, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तामरम रनवे बचाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। Going on? Based on simplified story from the world of aviation. Okay. Military, damn.
हम सबके लिए मंगाया था और ये अकेली खुशती जा रही है। भुक्कड़ है भुक्कड़। एक तो जिस लड़के को देखने जा रहे हैं वो तो बेरोजगार है, पता नहीं किसी स्टेशन पे भजिया चल रहा होगा, उसे देखने का भूत क्यों सवार है? देखने में क्या बुराई है? अरे ऐसा कभी होते हुए देखा है क्या कि कोई लड़की लड़के को देखने जा रही हो और अगर उस लड़के ने तुझे नापसंद कर दिया तो? पिछले महीने जो लड़का देखा था उसमें क्या बुराई थी? अरे सोच क्या रही है, जवाब दे। क्योंकि पिछले महीने जो लड़का देखा था उसके बाल सफेद थे, वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए दूसरा अरे देखूंगी। जीजा जी, स्वयंवर रचाएंगे तभी तो राजकुमार मिलेगा बच्ची को। बच्ची नहीं घोड़ी है। इसकी उम्र की लड़कियों को 10-12 बच्चे हो चुके हैं, पता तुझे? क्या कहना चाह रहे हो बाबू आप? मुझे कहीं भी उठा के ठोक दोगे? आपको पता है पूरे खानदान में सिर्फ मैं ही एक अकेली पढ़ी सही लिखी कह रही है हूँ। बच्ची। आपके इस लाडले ने पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करके कौन सा दिन मार दिया? मुझे क्यों सुना रही है? बीच में नहीं, किनारे तक घसीटूंगी। मैं बोला था ना सच नहीं है। अरे बेटा, जब मैं तेरी उम्र का था तब 3-4 शादियां कर ली थी। अब तो उनके बच्चे भी हो गए, उनके भी बच्चे हो गए हैं। बैठ जाओ वरना गिर पड़ोगे। क्या हूँ? देखा, मैंने कहा था ना गिर पड़ोगे। चलती गाड़ी में हाथ पैर और जबान ज्यादा नहीं चलाने चाहिए। हाँ अपना हाथ हटा बुढ़िया। खुद तो मेरी बाप की उम्र का है, मुझे बुढ़िया बोल रहा है। एक तो मेरा रिजर्वेशन पर सारा गांव आके बैठा और मुझे ही धक्का दे रहे तुम लोग। ओए मद्रास के जवाब, ज्यादा देर तकलीफ नहीं होगी। हम 16 बंधन पर उतर जाएंगे, फिर पैर फैलाकर सो जाना। ये संती बुढ़िया, ये एक्सप्रेस ट्रेन है, कहीं पे भी नहीं रुकती। रुकेगी। 6 महीने पहले हमारे मारन ने रेल की पटरी पे बैठ के ट्रेन रुकाने के लिए मोर्चा निकाला था। रेल वालों का कुछ नहीं चला। अब हर ट्रेन 16 बंधन पे रुक के ही जाती है। तो तुम लोग मेरे रिजर्व सीट पे क्यों बैठे हो? कहीं और बैठो, यहाँ क्यों बैठ रहे हो? ये ट्रेन और सीट को पुड़िया बना के अपने पास ही रख। अब तो हम इस ट्रेन से आएंगे जाएंगे भी नहीं। क्यों गली पार हो रहे वो हो? हम लोग को प्लेन में बिठाएगा। क्या? जहाँ भी जाएंगे उड़ के जाएंगे। कौन बिठाएगा? हमारा मारन। क्या आपने कभी किसी के मरने पर लोगों को नाचते हुए देखा है? नहीं ना? लेकिन ये लड़की इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि मरने वाला इन लड़कों के शराब पीने पर इनके बाप को शिकायत करता था और इन्हें बहुत मार पड़ती थी। क्योंकि अब ये मर गया है इसलिए इनके घर पर कोई शिकायत नहीं करेगा। वो लंबे बाल में और काली शर्ट में नाच रहा है ना, वही है लड़का। ये तो खानदानी कल्याण लगता है। गाड़ी बनाने तक के पैसे नहीं इसके पास। अबे नाचना बंद कर, लड़की वाले तुझे देखने आए हैं। अरे इसके ऊपर कोई भूत या चुड़ैल का साया है। अरे बंद करना यार। देखिए चक्कर आ- मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग खुशी मनाने के लिए नाच रहे हैं। ये मेरे बाप का दुश्मन था, ये मर गया इसीलिए नाच रहा हूँ। फिर तो मैं भी नाचूंगा। पत्थर, बंजर जमीन और नारियल का बचा कुचा पेड़। शादी के बाद ये सब कुछ आपकी बेटी को भी मिलेगा और ये बैलगाड़ी। वाह, इससे ज्यादा तो मेरे नौकर के पास है। पता नहीं क्यों आ गए ये यहाँ। पहाड़ भी नहीं गई है। अरे शर्मा, और ये ये जमीन जमीन भी। आइए बैठे देखिए। नाश्ता कीजिए ना। इतनी दूर से हम यहाँ सिर्फ ये नाश्ता करने आए हैं? यहाँ कोई केक वेक नहीं बनाता क्या? ये केक। यहाँ घर का ठिकाना नहीं है, अब तुझे केक चाहिए। मुझे इसी का अरे केक पहले ही सब सच बता देता हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब तक जो कुछ भी कमाया था सब किश्तों में चला गया। सरकार ने डैम बनाने के लिए हमसे हमारी उपजाऊ जमीन ले ली और ये बेकार जमीन दे दी, इसलिए हम अब मेरे पास खुद की बस एक चीज बची है और वो एरोप्लेन कंपनी शुरू करने का आइडिया। उसके लिए 24 बैंकों ने लोन रिजेक्ट कर दिया है। अबे डरियल, 24 बैंकों ने रिजेक्ट किया है तो मेरी बेटी ने भी 20 लड़कों को रिजेक्ट किया बापू है। झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। बोली हरिश्चंद्र की ए, औलाद। चुप। बाकी लड़कियों की तरह सिलाई विलाई करना, खाना बनाना, पति की सेवा करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। नहीं, मेरी भांजी मजाक कर रही है, इसे ये सब आता है ना? सच हाँ, सब बताओ आता बेटा। है, पर ये करना नहीं है। मुझे खुद का बेकरी बिजनेस करना है। हाँ हाँ कर लेना, तुम बेकरी चलाना और मेरा बेटा प्लेन उड़ाएगा। चलो पहले खाना खा लो। हाँ हाँ भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। चलो ए, रुक जा, रुक जा, रुक जा। आपका ड्रीम। देखिए, हम लोग इतने भी भूखे नहीं कि रिश्ता होने से पहले लड़के वालों के घर पे खाना खाना। और हम इतने भी गिरे हुए नहीं कि मेहमान को भूखा जाने कहा। चलिए हाँ, ना। चलिए, चलिए। अरे आओ ना। अच्छा, ये सचमुच वाला प्लेन ला रहा है या खिलौने वाला प्लेन लेकर आ रहा है? मामा जी एक बात बताइए, आपने कभी असली प्लेन देखा है क्या? अरे देखने की बात करते हो, मैंने प्लेन उड़ाया है। अरे मेरा एक दोस्त पायलट है, उसके साथ मैं जाता हूँ और जब वो बीड़ी पीने जाता है ना तो प्लेन मैं चलाता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कई बार प्लेन उड़ाया है। ये तुमको प्लेन के लिए पैसा कौन दे रहा है? ये सब बातें हम करेंगे, तू क्यों पूछ रही है? पढ़ी लिखी हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। तो तुम्हें 20 लड़कों ने मना कर दिया? तुम्हें 24 बैंकों ने लोन के लिए मना किया। पहले उस बारे में बात करें। बैंक के लोगों में अकल कम थी। हाँ तो उन लड़कों में भी अकल कम थी। इतने सवाल कर लिया, चुपचाप खाना खा लो। 1 2 3 सिर्फ 3 चीजें। एयरप्लेन कंपनी शुरू करना तो बहुत आसान है। बेकरी शुरू करना तो उससे भी आसान है। तो अभी तक शुरू क्यों नहीं की? बेसिक चीज ही नहीं मिली। पैसा
धीरे धीरे जमा कर रही हूँ। बाकी सब तो समझा, लेकिन ये संतूर कैप्सूल क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट। लाते। बैंक हमें कर्जा देती है तो कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है, पर एक वेंचर कैपिटलिस्ट वीसी के लिए तुम्हारा आइडिया ही तुम्हारी गारंटी है। अगर उन्हें आइडिया पसंद आ गया तो वो पैसे दे देते हैं। ओह, तब तो मेरे को भी वीसी चाहिए। ये कौन है? वीसी है क्या? परेश गोस्वामी, जैज एयरलाइंस के मालिक। उन्होंने अपनी एयरलाइन कंपनी का सपना पूरा किया बिना किसी सहारे या मदद के। मेरे हीरो हैं। ये लो, इस गरीब देश में लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, छत नहीं, उन्हें आखिर प्लेन की क्या जरूरत है? 100 साल पहले लोग कहते थे कि बिजली की जरूरत नहीं, 50 साल पहले कहते थे गाड़ी क्यों चाहिए। कौन करता है ये फैसला? अब क्या अमीर ही गरीब के लिए फैसला करेगा? आपको कुछ नहीं पता, दिल लगा के खाना खाओ। लड़की बड़ी होशियार है। Very good. मेरी हाँ है। क्या कहा? तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। Why wouldn't he? तू तो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड है। हाँ, मेरे को सोचने का वक्त तो दे। कभी कभी सोचने के बाद भी हम आखिर वही करते हैं जो हमारा दिल चाहता है, तो सोचने में वक्त क्यों बर्बाद करना है? Oh yes. बस चले तो माँ बाप को बर्बाद कर दो, वक्त क्या चीज है। शुरू हो गई। कल तक डिसीजन बता दूंगी। देखा, मेरी भांजी है। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। चलो जल्दी सो जाओ, सुबह ट्रेन पकड़ के जाना है। चलो पहले आप सो जाओ। उस तरफ। एक गोचू, जब तेरा गांव में इतना बड़ा घर है तो फिर यहाँ वीराने में क्यों रहते हो जहाँ बिजली नहीं है? बिजली हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? मास्टर जी के घर पे भी 20 साल पहले बिजली नहीं थी, पर अब मैं वहां नहीं जाता। अबे तू कहाँ जा रहा है? पिताजी, मैं उनके साथ प्लेन में बैठने जा रहा हूँ। यहाँ रास्ते नहीं बने और तुझे प्लेन उड़ाना है क्या? पहले बाल काटना सीख। अरे जरूरी है क्या? पढ़ लिख कर वो भी नाई ही बने। चाहे कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर ले, काम तो आखिर खानदानी करना पड़ता है ना। अभी सीखेगा तो काम आएगा ना। बेटा ये मटका कल सुबह तक अपने सर पर रखना, मैं कल बाल काटूंगा। नहीं रखूंगा, अभी बाल काटो। एक तो इस गाँव में बिजली भी नहीं है और ना ही यहाँ पर ट्रेन रुकती है। सफर करना बहुत मुश्किल हो गया है। कागज और कलम मेरे पापा की ताकत है। उन्होंने सरकार को कई खत लिखे ताकि हमारे गांव में भी ट्रेन रुके। आप कब तक रेल वालों को चिट्ठी लिखेंगे? जब तक मुझ में जान बची है तब तक। हाँ, लिखते लिखते कागज और स्याही दोनों खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंगने वाली। मास्टर जी खत लिखते रहे, विनती करते रहे, पर कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन मैंने मोर्चा निकाला। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमें रुकनी चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे क्या हुआ? इतना खून क्यों निकल रहा है? तुम्हारे बेटे ने शोलाबंदन स्टेशन पर ट्रेन को रोकने के लिए पत्थर मारे। राम के बेटे को चोट भी लग गई। उसकी एक आंख फूट भी सकती थी, पता है? तूने ऐसी हरकत क्यों की? चल अंदर चल। वो तो राम की भलमनसा समझो, जो उसने इसे मेरा बेटा होने की वजह से छोड़ दिया। पर उसने मुझे जिस तरह से देखा, मैं तो अपनी ही नजरों में गिर गया। मैं यहाँ गांव के बच्चों को अहिंसा का पाठ पढ़ाता हूँ और मेरा अपना बेटा ही हिंसा का प्रदर्शन करता रहता है। पापा, आप ही कहते हैं ना वक्त से कीमती कुछ नहीं। अगर वो ट्रेन यहाँ रुकेगी तो इस गांव में रहने वाले हर एक की जिंदगी बदल जाएगी। बदलाव ऐसे ही लाना पड़ता है। 2-4 पत्थर मारे तो गलत क्या? उस ट्रेन पर पत्थर मार के क्या मिल गया? तुम एक शिक्षक के बेटे हो, कोई गुंडे नहीं। आया बड़ा। अगर तुम चाहते हो कि इस गांव में ट्रेन रुके तो सरकारी अफसर को खत लिखो। कभी लिखा? कोई काम ढंग से करते हो? आपने जिंदगी निकाल दी खत लिखने में, क्या फायदा हुआ? खत लिखने की वजह से ही आज गांव में बिजली है। मुंह बंद कर और अंदर आ। खत की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है ये किस बारे में बात कर रहा है। बोलने दो उसे। चाहिए ना, इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, भूखे पेट बकवास करता है, पता है ना? एक खड़ा क्या है? चाची, अगर इसमें हिम्मत है अपने बाप के सामने वो बात कहने की तो कहने दो इसे। कल सुबह होते ही मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप अपने बेटे को पुलिस के हवाले करेंगे? जब माँ पेट से थी और डॉक्टर की जरूरत थी तब क्या किया? आप सिर्फ खत लिखते हैं कि गांव में मेडिकल कैंप होना चाहिए, जल्दी मदद भेजिए। आप क्या मुझे पुलिस के हवाले करेंगे? जेल आपको होनी चाहिए। मेरी छोटी बहन की हत्या के इल्जाम करने दूंगा। गाली को दूसरे गाँव ले गए क्योंकि हॉस्पिटल वहाँ था। आराम से कुर्सी पर बैठकर जिंदगी भर खत लिखने से राती भर फर्क नहीं पड़ा इस गाँव में। आप नाकामयाब इंसान हो पापा, और जिंदगी भर भैया। अगर हिंसा गलत है तो आपने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? क्या बोल रहा है?
बहुत इज्जत दे दी तुमने। अब जाओ यहाँ से और मेरी चिता को आग देने भी मत आना। क्या किया बेटा तुझने, क्या किया बेटा? अरे सुनिए, ये जा रहा है, आइएगा, इसे रोकिए। और फिर मैंने एनडीए ज्वाइन किया और उसके बाद एयरफोर्स। तो बहुत पहुंची हुई चीज है। एयरफोर्स में किसी के साथ पंगे वंगे तो नहीं लिए? खत में लिखता है मेरा भेजा हुआ खाना उसे मिलता ही नहीं है। पता नहीं बीच में कौन खा जाता है। चिट्ठी आई है। जरूर पोस्ट ऑफिस वाले खा जाते होंगे। अगर इस बार उसे ये डब्बा नहीं मिला ना तो कसम से कहती हूँ लड़ाई करूंगी जाकर, वरना खुद ही डब्बे में बैठ कर जाऊंगी। फिर देखती हूँ इधर लेके हमारे पास। माँ जी मैं पढ़ के सुनाऊं? ज्यादा बकवास मत कर, तीसरी कक्षा तक पढ़ी हूँ मैं, पढ़ने आता है मुझे। जरा देख मेरे बुढ़ाऊ को देख, रोज बेटे को एक चिट्ठी लिखते लेकिन भेजते नहीं है, छुपा के रख देते हैं। मुझे पढ़ना आता है, तुम लिखते रहो। प्यारी माँ को प्रणाम। देख बुढ़ाऊ कैसे चल रहा है। माँ मैं टायलेट बन गया हूँ। टायलेट नहीं, पायलट। हाँ मुझे आता है, मुझे पढ़ना मत सिखा। माँ मैंने अभी अभी एक स्कैन किया। अरे एग्जाम स्कैन। हाँ वही। माँ तेरे आशीर्वाद से तेरा बेटा मारन टायलेट मारन बन गया है। अरे माँ जी पायलट। हाँ वही रे। माँ जब प्लेन का इंजन आवाज करता है तो लगता है जैसे बापू भड़क गए हैं। माँ यहाँ एक नायडू नाम का टायलेट ऑफिसर है, वो भी बापू की तरह मुझे टार्चर करता रहता है। कौन है रे टायलेट नायडू का बच्चा? उसकी खोपड़ी को कचौड़ी बना के गरम गरम तेल में तल दूंगी। मारन कैसा है तू? गाली, मैं ठीक हूँ। माँ कैसी है? कौन माँ? माँ भी ठीक है। जल्दी से माँ को फोन, तो मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। दरअसल माँ पिताजी को साथ में लेकर आ रही है, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। अरे वाह, वो लोग आ गए। 1 मिनट, माँ जल्दी आइए। अरे लाइन कट जाएगी। जल्दी बुलाओ ना उन्हें। अरे जल्दी चलिए ना, लाइन कट जाएगी। हाँ, दे मुझे। हेलो मारन। माँ कैसा है बेटा? तेरे बापू भी आए हैं। मारन। हेलो माँ। आवाज आ रही है मेरी? माँ आवाज नहीं आ रही है। मारन देखना, उसकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माँ मारन हेलो। माँ आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो बापू को देना। फोन तो कट गया। कट गया। अरे काली तू पापा को फोन देना। वो नाकामयाब इंसान से क्यों बात करेगा? वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। ऐसा मत करिए। बात की पापा मुझे सुनाई दे रहा है। हेलो आई जस्ट मेक वन मोर कॉल। अरे उसे आपसे बात करनी थी। ये जो मारा और भी लोग लाइन में, सबको 3 मिनट ही मिलते हैं। अगले महीने बात कर लेना। चलो आगे बढ़ो। लॉजिस्टिकली वी कैन सेव अ लॉट ऑन दिस। एक MI-26 काफी होगा? क्योंकि ये आर्मी के साथ जॉइंट ऑपरेशन है, हम एयरमैन को उनके साथ रोड ट्रांसपोर्ट से भेज सकते हैं। एक ट्रांसपोर्ट चॉपर काफी होगा। हम फ्यूल को रेशन करके काफी खर्च कम कर सकते हैं। हम कोई खर्चा कम नहीं करेंगे मारन। इंडियन एयरफोर्स कंजूस नहीं है। सर हमें रिपोर्ट मिली है कि नासापुरम के जंगल में काफी घुसपैठिए छुपे बैठे हैं। हमारे जितने ज्यादा लोग जमीन पर होंगे उतना खतरा कम होगा सर। मैं कोई कंजूसी नहीं कर रहा, दिमाग से काम ले रहा। ओ ऐसा? चैतन्य सर तुम्हें मैं दिमाग से पैदल लगता हूँ? नहीं सर। परेड ग्राउंड के 50 चक्कर, 50 किलो डेड वेट। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ चक्कर लगाएंगे। 100 राउंड्स, 80 किलो, वो भी 1.5 घंटे में। ओह चलो। क्या हुआ? क्या यहाँ बैठकर गप्पे मार रही है? सुबह की ट्रेन से हमें जाना है, पता नहीं है तुझे? चल चल के सो जा। वो जो है तो ठीक ठाक, लेकिन इसकी दूसरी बीवी नहीं बनना, क्योंकि इसकी पहली बीवी तो प्लेन है। आप मुझे मत उठाना, खुद ही इसको ढूंढ लेना। मैं सो रहा हूं। चल ना, कितना देखेगी उसे? अभी शादी नहीं हुई है उससे तेरी। चल जल्दी चल, दिमाग खराब करके रखा है इस लड़की ने। चल चल के सो जा। एक बार पलट के देख ले बंदरिया। लगता है घोंचू को प्यार हो गया है।
सीधे देख के चल। सोच के सुबह बताती हूँ। चल। And guys, that was the end of this part. Hope you guys enjoyed it. Like I said, make sure to let me know what other movies to react to. Don't forget to like, share and subscribe. And hopefully I'll see you on the next one. Take care. See you soon. Bye.